And a shocking and gruesome murder case has come to light from Lucknow, where a 19-year-old son allegedly killed his own father, dismembered the body and disposed of it in a drum. What has stunned the investigators even more is the level of planning that went behind the crime. Police say that 19-year-old Akshat carried out the murder with meticulous planning. The accused allegedly killed his father on 20th of February, stuffed the body into a drum and attempted to dispose of it after cutting off hands and legs. Investigators describe Akshat as calculative and composed and complain with the police while allegedly knowing the truth himself because he killed his own father by then. He actively contacted neighbors, appeared desperate to trace his own father, and even created a WhatsApp group of relatives to coordinate the search operation, all in an attempt to avoid suspicion. Police sources say that the motive appears to be control over his father's business and finances. Deceased Manvendra Pratap Singh owned 6 pathology labs, 2 liquor shops and lived in a luxurious house in Ashiana Sector L. He was originally from Jalaun. Neighbors claim that father had imposed strict discipline on his son, which the teenager found unbearable. Akshat had earlier left home 3 years ago after a dispute and later returned back. He was reportedly pursuing BBA after dropping plans to prepare for NEET and other competitive exams. Investigators also revealed chilling details of how he disposed the body. Akshat allegedly filled a sleeping bag with cotton, wrapped the body tightly, sealed it inside the bag, and then placed it inside a blue drum. Police say that the sleeping bag, large quantity of cotton and the drum were arranged in a highly calculated manner. And even more disturbing is the fact that Akshat's sister, who is a class 11 student, was allegedly aware of the murder but did not inform anyone and continued behaving normally. Late last night, police recreated the crime scene to piece together the sequence of the events. गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। आशियाना सेक्टर एल में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर एक पिता की हत्या बेटे ने बहुत ही निशंस तरीके से की और उसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार एक बेटा अपने पिता की हत्या इस तरीके से कैसे कर सकता है और जिस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश हो गई वो वाकई हैरान करने वाली है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। जो मृतक हैं उनके मित्र भी हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, कितने सालों से आप इस परिवार को जानते हैं? हम 7 साल से जानते हैं। 7 साल से जी। कभी आपको लगा कि परिवार में इस तरीके का भी डिस्प्यूट है कि बेटा ही बाप की हत्या कर सकता है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी तो बेटे के साथ हम लोग खुजवा रहे थे। वो हमारे लोगों के साथ ग्रुप में भी शामिल था, थाने भी जा रहा था, इधर उधर। सबसे पहले बेटे से ही पूछा था कि कोई ऐसा तो नहीं हॉट टॉक किसी से हुई हो। दोस्तों के बारे में हमें भी जानकारी, किसी दोस्त से, किसी महिला से या तुमसे कोई विवाद हो। बोला नहीं कि वो दिल्ली जाने कह के गए। हम सो रहे थे, उसने बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो दिल्ली चले गए। हमसे बोला गेट बंद करने के लिए। तो हम लोग सीसीटीवी देख रहे थे, उनके रात को आने की तो दिख रहा था। तो हमने बोला हो सकता इतने कैच नहीं करते, सीसीटीवी निकल गए हो पॉलीथीन लेके पैदल। हालांकि औरत की किस गाड़ी या किस मित्र के साथ गए तो वो नहीं मिले। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही देखते रहे, इधर उधर दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे कि हो सकता कहीं नाराज़गी होकर चले गए हों। लेकिन जब वो शाम तक नहीं आए, फिर कल 23 तारीख को हम लोगों ने एक्शन लिया। हम सब लोग पुलिस थाने पे ज़्यादा प्रेशर बोला कि अभी तक आप लोगों ने एक्शन ही नहीं लिया। लड़का दे के आया तो हम लोगों से बोलता कि हम FIR कर रहे हैं, एप्लीकेशन दिया, लेकिन पुलिस भी आप जानते हो कि नॉर्मल केस को कितना हैंडल करती है। जब कल सुबह गए तो ऑन एंड फानन
उन लोगों ने एक्शन लिया। भरोसा भरोसा वो जगह जहां पर उनके बॉडी के पार्ट्स डंप किए पार्ट्स मिले हैं वहाँ और पर। सीसीटीवी फुटेज जो बात आप कर रहे हैं, तो क्या उसमें मानवेंद्र जी सिर्फ घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं? वो कार से आए, कार खड़ी की थी, वो दूसरे घर में सीसीटीवी है, तो वहाँ बैठे थे, फोन बात कर रहे थे, फिर वो घर में आते हुए दिखे थे। तो ये तमाम लोग हैं जो कि सबसे करीबियों में से मानवेंद्र प्रताप सिंह जो मृतक हैं उनके थे, और तमाम चीज़ें ये अक्षर प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका दिमाग था, ब्रेन था, और वो ऐप के जरिए यहाँ तक कि अपने पिता की ही लाइव लोकेशन भी ट्रेस कर रहा होता था। यानी कि उसे हर वक्त पता होता था कि उसके पिता किस जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, कितनी देर वो रुक रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो शातिर दिमाग था निश्चित तौर पर, और हत्या को अंजाम देने के बाद भी बिल्कुल सामान्य रूप से अपने आस पड़ोस में तमाम लोगों से मिल रहा था, अपने पिता को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहा था, उस पर संदेश भेज रहा था, लोगों को कॉल कर रहा था, और पुलिस में भी फॉलो अप यहाँ तक कि वो ले रहा था। लेकिन वो 20 तारीख को ही हत्या की घटना को अंजाम दे चुका था, जिसका पटाक्षेप कल हुआ, यानी कि सोमवार को।